Hello students, the aim of the experiment is to study the magnetic field produced by a current carrying solenoid using a search coil and then find the value of permeability mu naught for air. So first of all, let us have a look at the apparatus. This is solenoid. Solenoid is a Greek language word which means channel. So solenoid is like a number of turns of insulated copper wire are wound on a soft iron core or on air core. So we have different number of turns here, 220, 440, 650, and you can see there are 3 wires which are for different number of turns, and this is a wire which is for this common terminal. So when we pass current through the solenoid, it behaves like a bar magnet with north and south pole. So next thing is the transformer. Transformer for solenoid is having this voltmeter, AC voltmeter, and this is the ammeter. This voltmeter will measure the induced EMF in the solenoid, and this is the current which is we are applying to the solenoid. And this knob is rheostat. With the help of this knob, we can change the value of this current. We can control this current with the help of this rheostat. Then there are 2 terminals for the pickup coil and 2 terminals for the input to the solenoid. So this is pickup coil. Pickup coil or search coil is a coil which is having number of turns. In this experiment we are having 3000 turns in this pickup coil, and it is used to measure the strong magnetic field. And when we vary this pickup coil through this solenoid which is behaving like a magnet, then it will measure the induced EMF, okay, because magnetic flux is changing when we move this, and with the change in the magnetic flux the induced EMF is produced. So next thing is connections. So these 2 terminals are for the pickup coil, ठीक है, हमने pickup coil यहाँ पे लगा दिया है. Then these 2 terminals are for the input to the solenoid. So one is in the common terminal and second wire is in any of these 3 terminals, ठीक है. So जो भी number of turns आपने यूज़ करनी है, you can insert this wire in that particular terminal, ठीक है. So that is all about the setup or apparatus of solenoid experiment. Next thing is how to take the readings or observations. So first is length of the solenoid. तो solenoid की लेंथ आप स्केल से मेजर कर सकते हो, या फिर आप देख सकते हो कि हमारी जो पिकअप कॉयल है इसके ऊपर एक स्केल बना हुआ है, ठीक है. सो दिस स्केल इज इन सेंटीमीटर्स. दिस इज 1 to 30. So 30 centimeter long pickup coil we have. So we can measure the length of solenoid with the help of this pickup coil. So you can see that we have approximately 26 centimeter length of the solenoid. So length of the solenoid is 26 centimeter. Then next thing is diameter of the solenoid. So we will measure the diameter of the solenoid with the help of vernier caliper. So you can take 1, then 2, and then 3 readings of the diameter. Then take mean and then divide by 2. We will get the radius of the solenoid, which is represented by A in the experiment. Then next thing is number of turns. We know that we have 3 options for number of turns: 220, 440 and 650. So here you can write 220, 440, 650. Then next is number of turns in the search coil. Number of turns in the search coil is 3000. Then diameter of the search coil. So we can measure the diameter of the search coil with the help of this vernier caliper. After measuring this diameter, then divide by 2, you will get the radius of the search coil. So all these observations or readings we will note down. We will use in the next parts of the experiment. So let us start with the first part, that is relation between the current I and induced EMF. This current I is current that is passing through the solenoid. We will measure from this ammeter, and induced EMF is being produced, and we will measure the induced EMF with the help of search coil. So we will insert search coil from this end and move this search coil toward the solenoid. तो इसको आप freely move कर सकते हो.
अब रीडिंग कैसे लेनी है? यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। एनी नंबर ऑफ टर्न्स यू कैन चूज़। लेट अस टेक नंबर ऑफ टर्न्स 650। पहले पार्ट में नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स रखने हैं एंड हमें रियोस्टैट से करंट वेरी करना है थ्रू द सोलिनॉइड एंड करस्पॉन्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ वी विल गेट एट दिस वोल्ट मीटर। फर्स्ट पार्ट में जो आपकी सर्च कॉयल है विद इन द सोलिनॉइड, हमें इसको सेंटर में रखना है। इसकी लेंथ है 26, सेंटर में रखने का मतलब 13 सेंटीमीटर। इसलिए हम यहाँ पे 17 पे रखेंगे। नाउ इट इज़ हेयर ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द सोलिनॉइड। यहाँ पे हमारी सर्च कॉयल है, ठीक है। एंड देन रीडिंग कैसे लेनी है रियोस्टैट से? आप देखो, रियोस्टैट से हम करंट वेरी करेंगे, ठीक है। और एक वैल्यू होगी करंट की, यू कैन सी कि करंट जो है एमीटर इसका लीस्ट काउंट है 0.02 और सिमिलरली वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट भी 0.02 है। मींस एक डिवीजन की वैल्यू 0.02 एम्पियर है एंड 0.02 वोल्ट है इन दिस केस। तो हम जैसे अभी ये रीडिंग जो है दिस इज अप्रॉक्सीमेटली ऑन द 7th डिवीजन एंड रीडिंग इज 7 into 0.02 0.14 एंड दिस रीडिंग इज ऑन द 4th डिवीजन 0.08 वोल्ट, ठीक है। ऐसे फिर हम सेकेंड रीडिंग सेट करेंगे 0.2 फॉर दिस एंड दिस इज 6th डिवीजन इंटू 0.02 0.12, ठीक है। देन नेक्स्ट रीडिंग ले लेंगे। दिस कंट्रोल इज इन आवर हैंड। यहाँ पे वैल्यू हम इक्वल स्टेप्स में वेरी करेंगे इस केस में, और जो जितनी इसकी वैल्यू आएगी वो नोट करेंगे। अब वैल्यू है 0.3 और इसकी वैल्यू है 0.2 अप्रॉक्सीमेटली। दैन वैल्यू नेक्स्ट ले लेंगे इसकी 0.4, ठीक है। 0.4 लेके इसकी वैल्यू देखेंगे, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.24। देन नेक्स्ट वैल्यू ले लेंगे 0.5 फॉर दिस एंड दिस वैल्यू इज़ 0.3, देन 0.6 एंड दिस इज 0.36, ठीक है। इक्वल स्टेप्स में मूव करेंगे। दिस इज द नेक्स्ट वैल्यू, देन दिस इज नेक्स्ट वैल्यू फॉर 0.8 एंड दिस इज नेक्स्ट वैल्यू 0.9 एंड 1, ठीक है। तो ये रीडिंग्स आप नोट डाउन करके इसका ग्राफ बना सकते हो एंड जो ग्राफ आएगा, ग्राफ बिटवीन आई एंड ई शुड बी अ स्ट्रेट लाइन विच प्रूव्स दैट जो मैग्नेटिक फील्ड है बी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, बिकॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है एन डी फाई ओवर डी टी। फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फाई इज बी इंटू ए इज द एरिया, डी बी ओवर डी टी। सो इट मीन्स वी कैन से दैट ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। सो इफ ई इज इंक्रीजिंग with increase in current means magnetic field B is also increasing with increase in current in the solenoid, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इज डिपेंडेंस ऑफ B ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे आपको करंट की वैल्यू फिक्स रखनी है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स वेरी करनी है। वी हैव 3 ऑप्शंस फॉर नंबर ऑफ टर्न्स एंड वी हैव टू नोट डाउन द करस्पॉन्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आपको करंट की वैल्यू यहाँ से कोई एक वैल्यू फिक्स कर लेंगे, जैसे अभी हमने 0.6 एम्पियर फिक्स कर लिया। अभी नंबर ऑफ टर्न्स 220 है और आपका दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अप्रॉक्सीमेटली 0.12, ठीक है। फिर हम दूसरी नंबर ऑफ टर्न्स यूज़ करेंगे 440। अब देखो 440 लगाने से ये करंट कम हो गया है, इसको फिर से 0.6 पे कर देना है रियोस्टेट की हेल्प से। तो जब ये 0.6 पे हो जाएगा यू हैव टू नोट डाउन द वैल्यू ऑफ ईएमएफ अगेन, ठीक है। ये दूसरी वैल्यू आ गई। फिर आपको नंबर ऑफ टर्न्स ये वाली यूज़ करनी है 650 एंड अगेन करंट डिक्रीज़ हो गया है, फिर से इसको हम 0.6 पे लेके आएंगे विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट एंड नाउ दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आपने सारी वैल्यूज़ नोट डाउन करके E/N निकालना है। E/N करेंगे यू विल गेट अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। जो रेशियो आएगी अप्रॉक्सीमेटली 3 केसेस में सेम आएगी। तो इट मीन्स कि जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज़ होती हैं वैसे वैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इंक्रीज़ होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज़ होता है। तो दिस इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। थर्ड पार्ट इज़ डिपेंडेंस ऑफ बी ऑन द पोजीशन ऑफ पॉइंट अलोंग द एक्सिस। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्न्स और करंट फिक्स रखना है। हमने नंबर ऑफ टर्न्स 440 रख ली
और करंट हमने फिक्स कर लिया है 0.6 एम्पियर। अब इसमें क्या करना है, आपको मूव करना है कॉइल को सेंटर में, स्टार्टिंग में सेंटर में रखना है, फिर लेफ़्ट साइड लेके जाना है सर्च कॉइल को। और हर एक पोजीशन के लिए आपने जैसे 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे आप मूव करोगे और करस्पॉन्डिंग ईएमएफ आप नोट करते जाओगे। फिर आपने सेंटर में उसको दोबारा से कर लेना है, फिर राइट साइड जाना है, ठीक है। फिर से आपने करस्पॉन्डिंग वोल्ट मीटर की जो वैल्यू है ईएमएफ की वैल्यू नोट करनी है। तो कैसे करना है, देखो ये आपकी सॉलिनॉइड की लेंथ क्योंकि 26 सेंटीमीटर है तो आप इसके सेंटर में रखेंगे कॉइल को, तो इसलिए मैंने इसको 17, देखो यहाँ पे मैंने 17 पे रखा है, इट मीन्स 13 सेंटीमीटर अंदर है। तो अभी सेंटर पे मेरी सर्च कॉइल है। अब ये जो वैल्यू है दिस इज़ एट द सेंटर, सो आई विल मूव टू द लेफ़्ट फ्रॉम द सेंटर। तो लेफ़्ट पे जाएंगे तो हम 2 सेंटीमीटर आगे चले गए, अभी 19 आ गया, 2 सेंटीमीटर आगे गए हैं, सो 2 सेंटीमीटर टुवार्ड्स लेफ़्ट फ्रॉम द सेंटर। तो अभी जो ईएमएफ की वैल्यू है वो नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर से हम 2 सेंटीमीटर आगे जाएंगे, 21, फिर से ईएमएफ की वैल्यू नोट करेंगे, देन 23, अगेन नोट डाउन दिस वैल्यू, देन 25, अगेन नोट डाउन दिस वैल्यू, देन 27, ठीक है। फिर से ये वैल्यू नोट डाउन करेंगे, थोड़ा सा फ़र्क आ गया है, थोड़ी सी डिक्रीज़ हो गई है, देन 29। तो अभी देखो ये वैल्यू कितनी डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है। तो ये रीडिंग्स एक साइड आ गई, फिर से हम इसको सेंटर पे ले आएंगे। ये जो भी मैंने रीडिंग्स दिखाई हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। फिर से हम सेंटर में लेके आएंगे, फिर राइट साइड जाएंगे। तो अभी पहले इसको सेंटर में कर लो, तो अभी ये सेंटर में होगी सर्च कॉइल। अभी हमें राइट साइड जाना है, इस साइड जाना है, ठीक है, दिस इज़ द राइट साइड। तो अभी हम 2-2 सेंटीमीटर इसको अंदर मूव करेंगे। तो 17 है, ये 0 मान के चलो, 2 सेंटीमीटर अंदर जाएंगे तो ये हो गया 15 पे आ गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आपने रीडिंग लेनी है, ठीक है। फिर हमने अगेन 13 पे आ जाना है, 13 पे आके फिर से रीडिंग नोट करनी है। फिर हमने 11 पे ले आना है इसको, नोट डाउन द रीडिंग, देन 9 पे आ गया, नोट डाउन द रीडिंग, देन 7, ठीक है, अगेन नोट डाउन द रीडिंग, देन 5, ठीक है। अभी देखो डिक्रीज़ हो गया, अभी हम ऑलमोस्ट राइट कॉर्नर पे आ गए हैं क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 26 है, तो ऑलमोस्ट हम राइट कॉर्नर पे आ गए हैं। सो ये जो रीडिंग आई है आपने इसको यहाँ पे लिखना है। सो रीडिंग नोट डाउन करने के बाद आपने ग्राफ बनाना है बिटवीन द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। टुवार्ड्स लेफ्ट जाएंगे ये वाले पॉइंट लगाओगे, टुवार्ड्स राइट जाएंगे ये वाले पॉइंट लगाओगे, एंड व्हेन यू मेक अ ग्राफ यू विल गेट द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, क्योंकि सेंटर से लेके कुछ डिस्टेंस तक आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट रहता है, एंड देन सडनली इट विल डिक्रीज, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ भी सडनली डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसा आपका ग्राफ आना चाहिए इस केस में, ठीक है। देन फोर्थ केस इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट। यहाँ पे आपके पास फ्रिक्वेंसी हमें पता है 50 हर्ट्ज़ है जो हमारी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी है। यहाँ से ओमेगा निकाल लोगे एंगुलर फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड, आपको जो वाली नंबर ऑफ टर्न्स यूज़ करनी है, जैसे हम ये 440 करिए तो इसमें से कोई भी एक वैल्यू ले लो, दैट इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलिनॉइड, कैपिटल N। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्च कॉइल, वी आर हैविंग 3000 टर्न्स फॉर द सर्च कॉइल, ठीक है। एंड देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सर्च कॉइल इज अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर। देन यहाँ पे करंट जो है सोलिनॉइड के थ्रू पास करना है वो आपने नोट डाउन कर लेना है। जैसे अभी हम 650 टर्न्स ले रहे हैं इस केस के लिए, और करंट हम ले रहे हैं 0.5 एम्पियर, ठीक है। ये वाला जो फोर्थ केस है इसके लिए 10 टोटल लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड हमें पता है 26 सेंटीमीटर। सो अब इसमें रीडिंग कैसे लेनी है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली प्रीवियस जो केस है वैसा ही करना है। सो यहाँ पे हमें डिस्टेंस ऑफ सर्च कॉइल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड लेना है, और राइट हैंड जो राइट एंड है सर्च कॉइल का उसका डिस्टेंस ऑटोमेटिकली आप मेजर कर लोगे, बिकॉज हमें सोलिनॉइड की टोटल लेंथ पता है 26 सेंटीमीटर। सो अगर हम लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस सर्च कॉइल का 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 4 लेते हैं तो देन हेयर वी विल हैव 22, ठीक है। इफ़ देर इज़ 6
देन हेयर इट इज़ 20, ठीक है, ये अपने आप आ जाएगा। और हर एक पॉइंट के लिए हमें निकालना क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वोल्ट मीटर की रीडिंग लेनी है। तो अभी देखो जो मेरी सर्च कॉइल है, अगर मैं यहाँ पे 30 पे कर लूँ तो मेरी सर्च कॉइल अभी इस पॉइंट पे है, मींस 0 है डिस्टेंस, क्योंकि हमें करना है, हमें लेना है डिस्टेंस ऑफ सर्च कॉइल फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो अगर ये 30 पे है तो लेफ्ट हैंड से मेरा सर्च कॉइल का डिस्टेंस 0 है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इस कॉर्नर पे है। तो मैं इसको 2 सेंटीमीटर अंदर लेके जाती हूँ। अभी देखो अगर ये 2 सेंटीमीटर अंदर गई है, इट मीन्स कि जो लेफ्ट हैंड है, ये वाला लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस हो गया 2 सेंटीमीटर, तो राइट हैंड से कितना बनेगा, यहाँ से लेके इतना, दैट इज़ 24, क्योंकि 26 टोटल लेंथ है। अगर इस हैंड से 2 है तो राइट हैंड से हो गया 24, ठीक है। तो इस जो पोजीशन के लिए हमने नोट करना है द वैल्यू ऑफ दिस वोल्ट मीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू जितनी भी आएगी आपने नोट कर लेनी है, अप्रॉक्सीमेटली 0.16 आ रही है वैल्यू। तो आपने यहाँ पे नोट करना है दिस इज़ 2, दिस इज़ 24 एंड दिस इज़ 0.16, ठीक है। और उसके बाद फिर देन नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 2 सेंटीमीटर और अंदर लेके जाएंगे। तो ये हो गया, इस एंड से डिस्टेंस हो गया सर्च कॉइल का 4, और इस एंड से कितना बचे फिर 22। सो ये हो गया 4, दिस इज़ 22 एंड द वैल्यू ऑफ वोल्ट मीटर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू इंक्रीज हो गई है 0.2, दिस वैल्यू इज़ 0.2, ठीक है। फिर हम इसको 2 सेंटीमीटर और अंदर ले जाएंगे, दिस इज़ 24, सो 24 पे आ गया, अंदर 30 तक रीडिंग है, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एंड फ्रॉम द राइट हैंड इट इज़ 20, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.2, वो सेम रहेगा। अगर ये 6 है, ये 20 हो गया, एंड दिस वैल्यू इज़ सेम, ठीक है। फिर से हम 2 सेंटीमीटर अंदर ले गए, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एंड देन यहाँ से हो गया 18, ठीक है। और वैल्यू हो गई 0.2 ही है, सो दिस इज़ 8, दिस इज़ 18, दिस इज़ 0.2, ठीक है। फिर ऐसे एक हम लास्ट रीडिंग ले लेते हैं। अभी ये 10 सेंटीमीटर हो गया फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, राइट हैंड से 16 हो जाएगा, एंड वोल्ट मीटर रीडिंग 0.22 हो गई है। सो दिस इज़ 10, दिस इज़ 16.22। तो ऐसे करके 4-5 रीडिंग्स आपने लेनी है। cos θ1 निकालना है, ये आपका y है, एंड दिस इज़ L माइनस वाई, ठीक है। cos θ1 निकालना है y ओवर a स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, दिस इज़ द रेडियस ऑफ सोलिनॉइड। इस फॉर्मूले से cos θ1 निकालना है, cos θ2 निकालना है L माइनस वाई ओवर a स्क्वेयर प्लस L माइनस वाई स्क्वेयर रूट, ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ये दोनों निकाल के θ1 cos θ1 cos θ2 एंड देन सब्स्टिट्यूट इन दिस फॉर्मूला। जो सारी वैल्यूज़ हैं, ऑल वैल्यूज़ आर गिवन इन दिस ऑब्जर्वेशन, और यहाँ से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ एयर, ठीक है। एंड देन दिस इज़ द एक्चुअल वैल्यू, कंपेयर एंड फाइंड द परसेंटेज एरर। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द सोलिनॉइड एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।